Okay, so welcome to this session. Today we are going to learn about classes in Python. So classes and objects is a broader concept which is used in most of the program. I mean, it is used in object-oriented programming. Most of the programming languages, modern programming languages, will have the concept of class and objects. Okay, so Python also has it. And if you have some programming background, you may have learned this in your computer science program, in your computer science classes where they teach object oriented programming. So they'll teach classes, they'll teach object oriented programming, and then also teach some inheritance. And there are some more concepts which are related to classes and object, all of that. Basically, object oriented programming. Even if you don't have that, don't worry. The most of the data scientists or the data analysts are slightly aware about the class objects and all of that, but it's not expected that you are software developers and you know the knowledge of object oriented programming as much as a software developer would know. But if you know, if you understand inheritance, if you understand encapsulation, if you understand class object and all of that properly, so based on classes and objects. So make sure you complete that and you'll get some idea. Okay, so class is basically a template या फिर उसको आप ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं जिसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं और कुछ मेथड्स होते हैं. ओके, एग्जांपल यहाँ पे दिया है. लेट्स से डॉग इज अ क्लास और ये डॉग के कुछ फीचर्स हैं सच एज उसका साइज क्या है, उसका एज क्या है, कलर क्या है, उसका ब्रीड कौन सा है. ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, सो ब्रीड नॉट ब्रेड. these are called as features class members. Okay, in addition to these there are also some things that the dog will. Okay, when I say do it means some actions. Actions कहाँ पे होते हैं? फंक्शन में. हम लोग फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन के अंदर कुछ कोड रहता है, राइट? वो कोड एग्जीक्यूट होता है. फंक्शन के अंदर यूजुअली एक्शंस होते हैं, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं. करेक्ट. तो फंक्शन कौन से यहाँ पे एग्जांपल डॉग के हैं. डॉग विल ईट, डॉग विल स्लीप, डॉग विल सिट, डॉग विल रन. ऑलराइट. So there will be a class and this class will have some data members and it will have some object or in it will have some methods. So methods are basically the behavior or the things that the class can do or will be doing. Okay, why do we really need the class is so that we can reuse the code. Okay? अभी अगर आपके पास आपने एक डॉग नाम का क्लास इनिशियलाइज कर लिया और उसमें आप डेटा मेंबर्स दे दिए और फिर मेथड्स लिख दिए, उसके बाद में आपको अगर वही वाला कोड जो स्लीप का है, सेट का है, रन का है, वो रीयूज करना है. ऑलराइट. तो हमने रीयूज मॉड्यूल्स के बारे में तो पढ़ा है, लेकिन मॉड्यूल्स जो होते हैं उसके अंदर हम लोग कभी कभी स्ट्रक्चरिंग के लिए उतना इजी नहीं जाता एज कम्पेयर टू क्लासेस. सो क्लासेस में स्ट्रक्चरिंग ज्यादा इजी जाता है क्योंकि क्लासेस के अंदर स्पेसिफिक टू क्लास और जो लॉजिकली सेंस करता है उन्हीं चीजों को रखे जाते हैं. मॉड्यूल्स में भी करते हैं हम लोग, बट मॉड्यूल इज मोर लाइक अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर फंक्शनल प्रोग्रामिंग जिसमें आपके फंक्शंस होते हैं. मॉड्यूल्स के अंदर क्लासेस भी लिखते हैं. अभी तक हमने जितना मॉड्यूल्स पढ़ा है उसमें हमने सिर्फ फंक्शंस पढ़ा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि फंक्शन ज्यादा रहते हैं. ठीक है, मॉड्यूल्स के अंदर भी क्लासेस लिखते हैं यूजुअली. ठीक है, तो मेन गोल उसका वही है जो मॉड्यूल्स के अंदर देखा था आपने, रीयूज करना कोड को और कोड को अच्छे से स्ट्रक्चर करना, बंडल करके रखना. और अगर यूजर को कुछ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स क्रिएट करने हैं. अभी तक हमने डेटा टाइप कौन से देखे हैं? लिस्ट, डिक्शनरीज, टपल, सेट. करेक्ट. इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग्स, ये सब बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर से. अगर आपको खुद का कोई डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो आपको क्लास यूज करके आप कर सकते हो उसको. ठीक है, हम लोग एग्जांपल देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ मैं.
Here's one definition about classes from Steve Jobs. You can take some time to read it. I'll read it once. So Jeff Goodell was one of the he was a journalist. He was asking Steve Jobs what exactly is object-oriented software and what exactly it means. So he was, in his words, objects are like people who live, breathe, and they have some knowledge. Okay, which is basically their memory. And rather than interacting directly with the memory of the person, you interact with the person himself. Correct? And that person is basically an abstraction of his memory, action, like uh, some kind of uh, wrap over which has some. So अगर कुछ कॉम्प्लेक्स चीज रहेगी, अगर आपको उसके अंदर की कॉम्प्लेक्सिटीज हाइड करनी है या फिर उसके अंदर की कॉम्प्लेक्सिटीज एक्सपोज नहीं करनी है यूजर को, क्योंकि there are multiple reasons that could you would do that, but it's all you usually have a abstraction on top of it, so that जो भी कॉम्प्लेक्सिटी से वो हिडन हो जाती है यूजर से. एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, करेक्ट. वो बॉक्स के अंदर जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट करके या फिर सब एनकैप्सुलेट करके एक रिमोट के अंदर. सो दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास या फिर ऑब्जेक्ट्स. अभी आप लोगों ने मॉड्यूल्स भी पढ़ा, तो हमने मॉड्यूल्स के अंदर से डायरेक्टली हमने वो फंक्शंस यूज किए. वो फंक्शन एग्जैक्टली करते क्या है और कैसे करते हैं वो फंक्शन के अंदर ही लिखा हुआ है, लेकिन आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हाउ एग्जैक्टली दैट थिंग इज वर्किंग. यू हैव टू वरी अबाउट हाउ कैन यू यूज इट. आपने जब वो असाइनमेंट की होगी पहले की नंबर 8, उसमें आपने देखा होगा कि पीयर होता है, सॉरी वॉल्यूम जब कैलकुलेट करते हैं फिर एरिया जब कैलकुलेट करते हैं, ऑल यू आर डूइंग इज यू आर जस्ट सेंडिंग द रेडियस सर्कल टू कैलकुलेट द एरिया. यू आर नॉट टेलिंग कि एरिया का फॉर्मूला ये है, या फिर यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि यूजर को पता हो कि एरिया का फॉर्मूला क्या है. यू जस्ट राइटिंग दैट कोड वंस एंड दैट एवरीवन हु इज यूजिंग दैट पर्टिकुलर फंक्शन नाउ is able to calculate the area even if he does not know the formula of area. It's a simple example because area का formula almost सबको पता होता है, but still there will be complex things like calculating the precision, calculating a recall, calculating creating a confusion matrix या फिर building a model, right? So जब मॉडल बिल्ड करते हैं तो फिर हमने जो कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ी थी, ऑप्टिमाइजेशन करना, वो लाइन का स्लोप निकालना, उसके बाद में रेगुलराइजेशन करना, ये सब कुछ जो होती है ये सब कॉम्प्लेक्स चीज है. आपको पता है कि काम कैसे करती है, लेकिन आपको उसका कोड नहीं लिखना. आप क्या करोगे, एक लाइब्रेरी कॉल करोगे, लाइब्रेरी के अंदर एक मेथड कॉल करोगे और वो मेथड सब कुछ आपको करके दे देगा. करेक्ट. सो दैट इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. तो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो यूजर को नहीं दिख रही है, and user does not have to worry. He can blindly say that this is working because firstly that library is being used by many people. Secondly, there's you can also have access to the code, so there's some trust there. All right. So that's what happens when you classes and you organize the code in your object oriented programming. So here's an example. हेलो Objects are created from a class. So आपके पास एक blueprint है कार बनाते कैसे. सर Yes. आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है बीच बीच में. बहुत ज्यादा हो रहा है Okay. सर. Is it happening for everyone? So वॉइस ज्यादा ब्रेक हो रहा है. okay. Give me a second. Okay. Okay. Let me just check your internet. अभी भी हो रहा है क्या? Can try to disconnect and connect back. Is this still happening? नहीं सर अभी नहीं. सर बार बार नहीं होता, बीच Okay. बीच में हो रहा All right. Okay. So let me just check here. मेरा Wi-Fi connection तो full है यहाँ पे. I don't see any problems. Let me just check here.
प्रॉब्लम है यहाँ पे? ओके, यहाँ सम प्रॉब्लम। इंटरनेट का स्पीड नहीं है आज, क्या हो गया इसको? हाँ, दिस इज सो स्ट्रेंज। 50 Mbps 90 Mbps आ रहा है। एनीवेज, और फिर से अगर होगा तो जस्ट लेट मी नो। आई ट्राई टू मे बी चेंज द इंटरनेट कनेक्शन। ओके, मैं दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर सकता, अगर हो रहा होगा तो बताओ मुझे बस। ऑलराइट, सो लेट्स कंटिन्यू। तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, और या फिर एक टेम्पलेट है, उसको यूज करके यू आर गोइंग टू क्रिएट सम एक्चुअल थिंग्स विच आर कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा है, आपके पास एक क्लास है विच इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ हाउ टू बिल्ड अ कार। ओके, और कार में क्या क्या होता है? कार में कलर होता है, कार में टायर्स होते हैं, चार डोर्स होते हैं, फिर मिरर होता है, और भी हजारों चीजें होती है कार में, ठीक है। और सारे कार्स में वही चीजें कॉमन होती हैं। तो आपको, अगर आपने ये कार बना दी, तो फिर से आपको दूसरी कार बनाने के लिए एक नया ब्लूप्रिंट नहीं लगने वाला है, आपको सेम ब्लूप्रिंट से और एक कार बना सकते हो। ओके, तो ब्लूप्रिंट है आपके पास क्लास का, और क्लास के ब्लूप्रिंट को यूज करके आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हो। सो दीज आर जस्ट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास। सो दिस इज अ कार क्लास एंड दीज आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कार क्लास। बिल्ड करने के लिए या फिर क्रिएट करने के लिए कंस्ट्रक्टर नाम का एक मेथड होता है, जो यूज होता है ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। These concepts are again common for all the object oriented programming languages। ऐसे नहीं कि ये सिर्फ पाइथन के लिए, सी प्लस प्लस में, जावा में, सब जगह पे सेम कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो क्लास ब्लू एक कंस्ट्रक्टर रहेगा, से आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करोगे। ओके, और ये मेथड जो आपको कॉल करने हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कॉल करने होते हैं उसके बाद में। सो यू विल से दिस ब्लैक कार, राइट? सो दिस इज इंस्टेंस ऑफ अ कार, इसको इंस्टेंस भी बोलते हैं कभी। So this is instance या फिर object of this particular class. So what you could see is this black color car, or you'll just give a name to this. Maybe this is car 1, this is car 2, car 3, car 4, car 5. Okay. So when you say car 1 dot open, maybe it'll open the door for this car. It is a method. Okay. So that is a method of a class. Similarly, dog में you'll have multiple dogs. You'll just create dog 1, dog 2, dog 3, dog 4. सब डॉग्स का साइज अलग रहेगा, सबका एज अलग रहेगा, सबका कलर अलग रहेगा, लेकिन उनमें फीचर्स तो सेम रहेंगे। सबको सबका साइज इंपॉर्टेंट है, सबका एज इंपॉर्टेंट है, सबका कलर इंपॉर्टेंट है। सब लोग मेथड्स वही यूज करते हैं, ठीक है। सो हियर्स एन एग्जांपल। तो क्लास में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें आप वेरिएबल्स या फिर मैं ये क्रिएट कर सकते हो एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो दिस इज अ क्लास कॉल्ड एज माय क्लास। इसमें आपने वेरिएबल क्रिएट किया x इज इक्वल टू 5। हम लोग ये एग्जांपल नहीं यूज करेंगे, हम लोग ये डॉग वाला एग्जांपल यूज करते हैं और बिल्ड करते हैं, ठीक है। जस्ट ओपन द पाइथन।
Let's give it a minute. तो चालू होता है, ठीक है. What we'll do is we'll build a class called as dog, and we'll give these members, and we'll also give this methods to it. Okay, and then we'll see how to create this objects and how to call. तब तक हम लोग init मेथड के बारे में पढ़ लेते हैं. और थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको बताया था कंस्ट्रक्टर, ठीक है. कंस्ट्रक्टर यूजुअली इज अ मेथड, एंड इन पाइथन अंडरस्कोर अंडरस्कोर init इज अ कंस्ट्रक्टर मेथड, ठीक है. ये मेथड यू सबसे पहले कॉल होता है जब लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है. जब हम लोग पर्सन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब सबसे पहले ये मेथड कॉल होता है, और इस मेथड के अंदर में कोड एग्जीक्यूट होता है. लोग देखेंगे क्या हो रहा है. लेट्स क्रिएट अ क्लास. सो क्लास क्रिएट करने के लिए क्लास यूज करना होता है. यूजुअली क्लास का जो नाम होता है वो फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल. आफ्टर दैट यू कैन हैव अ कैमल केस हियर. कैमल केस का मतलब होता है कि फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड विल बी कैपिटल. So let's create some things here. So breed is equal to, let's say मैं none बोल देता हूँ. I don't know what the breed is. But their size is equal to none. फिर से और कुछ functions लिखता हूँ मैं क्लास के अंदर अभी. These are the class members या फिर class method class variables. And this is the class. तो method क्या लिखता हूँ मैं, से walk. तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, प्रिंट करता हूँ. नाम देते हैं हम लोग, ठीक है. नेम भी रख देते हैं. नेम इक्वल टू नन लिखता हूँ. इसका नाम लेना है. यस. सर स्क्रीन आगे नहीं गई, अटक गई मेरी. ब्रेक इन. हेलो सर, स्क्रीन में भी लैग हो रहा है सर मेरे. ये सबके इसको ओके. सबका लैग हो रहा है, सबका लैग हो रहा है क्या स्क्रीन भी? यस. वॉइस Okay. ज्यादा ब्रेक हो रही है सर अभी. ओके, लेट मी जस्ट डू वन थिंग. मैं मेरे दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करता हूँ एक बार. आई थिंक होपफुली अभी ठीक से चलेगा ये. लेट्स जस्ट चेक द स्पीड टेस्ट वंस. और भी स्लो है. Yeah, I can share the recording of the session, but पता नहीं इंटरनेट को क्या. Are you all able to hear me now? लैग हो रहा है यस क्या सर. अभी भी? यस सर. ओके. लैग हो रहा है स्क्रीन अभी भी? हेलो सर, यस. जब आप प्रेजेंट करते हो ना तब आप आवाज ब्रेक होता है और स्क्रीन लैग होता है. ठीक है. लेट मी डू वन थिंग. लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग एंड लेट मी स्टार्ट प्रेजेंटिंग ओनली वन थिंग विच इज जिस स्क्रीन में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है. और मे बी आई जस्ट स्टार्ट प्रेजेंटिंग वन विंडो. उससे शायद से थोड़ा फास्ट हो जाएगी. So instead of sharing everything, I'll just share one window. ओके, होपफुली अभी नहीं होगा कुछ. अगर होता है बार बार तो आई जस्ट शेयर द रिकॉर्डिंग, सो डोंट वरी.
रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा मैं बाद में, बट नॉट श्योर व्हाट टू डू। चेंज भी किया मैंने डिवाइस भी, फिर भी ब्रेक होता है। लेट मी जस्ट डू अ स्पीड टेस्ट ऑन दिस वन वंस। It should be slower than that. Yeah, मोबाइल का इंटरनेट है ये। ओके चलो, लेट्स कीप गोइंग। अगर लैग होता है तो पॉइंट मी बैक अगेन, या फिर मैं लीव करके वापस आ सकता हूँ। लेट मी जस्ट ट्राई दैट, मे बी एक बार वो करके देख लेते हैं। Go to, have to connect it from different device first. ऑलराइट, लेट्स सी। अगर फिर से होता है तो फिर विल ट्राई टू सी व्हाट टू डू। ठीक है, सो व्हाट आई सेइंग इज, हमने क्लास बनाया डॉग नाम का, और उसको ये फीचर्स दे दिए, ये मेथड दे दिया वॉक, एंड फिर बोल दिया कि जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा नेम इज वॉकिंग। हमें पता नहीं नेम क्या है अभी तक। ठीक है, there is a problem here, but we'll talk about the problem in some time. For now, let's just assume that this is what we have. थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि we need a constructor which is going to construct things. ठीक है, तो I'll just call it init. एक डॉग कंस्ट्रक्ट करने के लिए we want the name of a dog, we want what breed it is, we want size of the dog, and maybe we want age. Let's remove size, I'll just keep age. And what I'm going to do now is, ये जो मेरे वेरिएबल्स है, ठीक है, नेम, ब्रीड, एज, ये सब मेरे क्लास लेवल पे अभी तो। लेकिन जब मैंने ये फंक्शन लिखा है, सो इनिट क्या है, कंस्ट्रक्टर है, बट इट्स अ फंक्शन, करेक्ट। तो ये फंक्शन के अंदर मैंने पैरामीटर सेंड किए बाहर से, तो ये पैरामीटर्स मुझे असाइन करने हैं डॉग को कभी तो। ठीक है, तो लेट्स डू समथिंग विच इज कॉल्ड एज इंस्टेंशिएटिंग अ क्लास। तो मैं क्या करता हूँ, एक डॉग क्रिएट करता हूँ, उस डॉग का नाम लिखता हूँ मैं, लेट्स से टॉम। ठीक है, ये हो गया डॉग। अभी अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है डॉग का, उसको नाम देना पड़ेगा, उसको ब्रीड बताना पड़ेगा, एज बताना पड़ेगा। सो ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट ओपन अ राउंड ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। So this is how I instantiate it. ओके, तो मैंने क्या बोला है, ये जो आपका कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर जो वेरिएबल्स है वो आपको यहाँ पर बताने पड़ेंगे, तभी वो ठीक से इंस्टेंशिएट होगा, नहीं तो इंस्टेंशिएट नहीं होगा। तो क्या बताना पड़ेगा, नाम बताना पड़ेगा, ब्रीड बताना पड़ेगा, एज बताना पड़ेगा। सो लेट्स गिव इट अ नेम। सो मे बी टॉम उसका नाम है। ठीक है, उसका ब्रीड क्या है, डॉग की ब्रीड एक दो बता दो आप लोग ही। Pug. German Shepherd. Pug. ओके, यूज जर्मन शेपर्ड इन समथिंग। तो उसका एज हम लोग डाल देते हैं, लेट्स से 5 इयर्स। ठीक है, इयर्स में ये, और 5 इयर्स। अभी क्या हो गया, ये डॉग का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। सो सबसे पहले तो ब्लूप्रिंट था मेरे पास, ये डॉग ऐसा ऐसा होता है, उसका नेम होता है, उसका ब्रीड होता है, उसका एज होता है, या फिर वो वॉक कर सकता है। ठीक है, वॉक के साथ साथ वो और क्या क्या कर सकता है, मे बी ही कैन ऑल्सो जस्ट कॉल इट एज, कैन डू कपल ऑफ अदर थिंग्स टू, विल नॉट गेट इनटू दोस डिटेल्स। अभी क्या है,
ये जो टॉम है, ये पग है, ये 5 है। ये मुझे बताना है कि ये टॉम का नाम या फिर इस वेरिएबल जो है, दिस वेरिएबल इज अ डॉग। ओके, दिस वेरिएबल इज अ डॉग ऑब्जेक्ट एंड ही इज हैविंग सम फीचर्स एंड दीज फीचर्स आर टॉम, नेम उसका, उसका ब्रीड और उसका एज। अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑल्सो हैज walk and eat which are the variable which are the methods on that. ठीक है, तो I'll just do this now. So tom dot जब मैं करूंगा तब मुझे ये सारे मेथड्स मिलने चाहिए। अभी सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आ रहा है यहाँ पे, अब मैं वो बताता हूँ आपको। अभी ये क्लास तो क्रिएट कर दिया, ठीक है, और ये इनिट भी लिख दिया आपने, लेकिन ये जो नेम है ये अभी तक इंस्टेंशिएट नहीं हुआ नेम के साथ में। सो ऑल आई हैव टू डू इज नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक है, ये जो नेम है वो ये वाला नेम है। ठीक है, थोड़ी देर में चेंज करूंगा मैं, डोंट वरी। breed इज इक्वल टू ब्रीड, एज इज इक्वल टू एज। ठीक है, ये नेम मुझे यहाँ पे असाइन करना है, ये ब्रीड मुझे यहाँ असाइन करना है, ये एज मुझे यहाँ असाइन करना है। ठीक है, तो अगर मुझे फॉर एवरी वेरिएबल या फिर एवरी ऑब्जेक्ट असाइन करना है तो मुझे पता रहना चाहिए वो ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो वो ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस होता है या फिर वेरिएबल होता है वो यहाँ पे अवेलेबल होता है फर्स्ट वेरिएबल में या फिर फर्स्ट पैरामीटर में आपके मेथड के। तो दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ। आपको सेल्फ लिखा हुआ दिखेगा हर बार इनिट में या फिर जो भी मेथड्स होते हैं वहां पे। ठीक है, सेल्फ का मतलब होता है ये ऑब्जेक्ट भेजा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, सेल्फ डॉट, ये किसका नाम है, ये जो सेल्फ ऑब्जेक्ट है उसका नाम है। ये किसका ब्रीड है, ये सेल्फ का ब्रीड है। किसका एज है, ये सेल्फ का एज है। ठीक है, सिमिलरली वॉक कौन करने वाला है, एक ऑब्जेक्ट वॉक करने वाला है, तो आई हैव टू टेल सेल्फ हियर। नाम किसका चाहिए मुझे, सेल्फ का। सेल्फ का मतलब होता है कि खुद, मैं, या फिर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन इन दिस केस हियर आल्सो सेल्फ। यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल होगा सेल्फ। वी कैन आल्सो हैव मोर वेरिएबल्स हियर बाय द वे। यहाँ पे लेट्स से स्टेप्स, जस्ट पुट स्टेप्स, स्टेप्स वॉक करना है, वॉकिंग फॉर। ये जो स्टेप्स है ये सिर्फ यहाँ पे यूज हो रहा है। ये मेथड, सॉरी ये इसका, इस क्लास का मैं ये नहीं है, वेरिएबल नहीं है, वो सिर्फ यहाँ का मेथड है, इस मेथड का पैरामीटर है वो। ठीक है, मैंने क्या किया, एक डॉग ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, उसको नाम दिया, उसका ब्रीड बताया, उसका एज बताया, और ये है उसका ब्लूप्रिंट। नाउ लेट मी क्रिएट द ब्लूप्रिंट। ये रन हो गया, मेरा ब्लूप्रिंट क्रिएट हो गया। मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। ठीक है, अब मैं जब इसको वॉक बोलता हूँ तब यहाँ पे लिख के आना चाहिए। स्टेप्स बताना पड़ेगा, कितने स्टेप्स वॉक करना है, 12 स्टेप्स। सो थिंक इट्स नॉट विजिबल टू एवरीवन, थोड़ा जूम इन करता हूँ मैं। यहाँ पर लिखा हुआ है टॉम इज वॉकिंग फॉर 12 मिनट्स। ठीक है, ये टॉम क्या है, ये जो टॉम है या फिर ये वेरिएबल जो मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे जो नाम दिया वो नाम मुझे यहाँ पर मिल जाता है डायरेक्टली सेल्फ डॉट नेम से। सेल्फ जो है दैट इज दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहला कॉल क्या हो गया, सबसे पहले इनिट कॉल हुआ। ठीक है, मैं प्रूव करके दिखाता हूँ आपको, या जस्ट पुट अ प्रिंट हियर, कॉलिंग इनिट। ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो सबसे पहले होता है कॉल इनिट। कॉलिंग इनिट लिख के आया, क्यों, क्योंकि सबसे पहले इनिट कॉल हुआ। ठीक है, ये मेथड कॉल हुआ, और ये मेथड कॉल करने के बाद ये जो सेल्फ डॉट नेम असाइन हुआ, सेल्फ डॉट ब्रीड असाइन हुआ, सेल्फ डॉट एज असाइन हुआ। जो नेम यहाँ सेंड किया, जो ब्रीड यहाँ सेंड किया, जो एज यहाँ सेंड किया, वो इस ऑब्जेक्ट को असाइन हो गया। फिर उसके बाद में जब मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मेथड कॉल किया तो उसी ऑब्जेक्ट के मेथड्स कॉल हुए, उसी का नाम लिख के आया, उसी के स्टेप्स लिख के आए। अगर मैं फिर से लिखता हूँ टॉम डॉट, अगर मुझे मेरी वेरिएबल के नाम असाइन एक्सेस करने तो डॉट से एक्सेस कर सकते हैं। डॉट नेम बोलता हूँ तो उसका नाम लिख के आएगा, डॉट एज बोलता हूँ तो उसका एज लिख के आएगा, डॉट ब्रीड लिखता हूँ तो उसका ब्रीड लिख के आएगा। ठीक है, लेट्स क्रिएट वन मोर ऑब्जेक्ट नाउ। तो आई जस्ट क्रिएट अ ऑब्जेक्ट नाम एज पॉम। ठीक है, तो इट्स ऑल्सो अ डॉग, तो कुछ तो नाम देते हैं हम लोग,
और दिस इज, ठीक है, पे डालते हैं 7 years। यहाँ पे 2 बार कॉलिंग इनिट लिख के आएगा क्योंकि सबसे पहले बार यहाँ पे कॉल होगा इनिट, इसके लिए, टॉम के लिए इसका इनिट कॉल हुआ टॉम का। फिर उसके बाद में पॉम का ऑब्जेक्ट बनाया, सॉरी पॉम नाम का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने डॉग का, उसके लिए अलग से इनिट कॉल हुआ। तो 2 बार इनिट कॉल हुआ यहाँ पे। ओके, टॉम का वॉक किया मैंने, जस्ट टू टॉम डॉट वॉक फॉर 50 minutes। ठीक है, तो टॉम इज वॉकिंग फॉर 12 steps, पॉम इज वॉकिंग फॉर 50 steps। यहाँ पे 50 steps नहीं लिखा मैंने, जस्ट पुट इट। अगर मुझे पॉम का ब्रीड पता करना है तो आई जस्ट हैव टू डू पॉम डॉट ब्रीड। उसका ब्रीड है गोल्डन रिट्रीवर। अगर मुझे पॉम का एज पता करना है, जस्ट डू अ एज हियर लाइक दिस। ओके, सो दिस इज हाउ यू एक्सेस class variables. This is how you access class methods, and this is how you create a class. Init method important है, constructor है, walk method है class का। ठीक है, self लिखना है, भूलना नहीं है, सारे methods में self लिखना है। self का मतलब होता है this particular object, जो टॉम है वो, उसका रेफरेंस यहाँ पे भेजा जाता है। ठीक है, तो self is important. You can change this to anything. You can basically say this is as something like f, it will still work। ठीक है, it will still work, but usually self ही लिखा जाता है। make sure you have self written there। it's not a reserved word, that's what I'm trying to tell you। जैसे int होता है, float होता है, रिजर्व वर्ड्स है ना, जैसे क्लास है रिजर्व वर्ड्स है, नन है रिजर्व वर्ड्स है, डेफ है रिजर्व वर्ड है, वैसे सेल्फ रिजर्व वर्ड नहीं है। यू कैन हैव एनी नेम एंड इट विल स्टिल वर्क, बट कुछ भी नहीं लिखना है, सेल्फ ही लिखना है फिर भी। ओके, so that is what the self parameter is। it's a reference to the current instance। जो आप इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो उसी का रेफरेंस जाता है सेल्फ में। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल दिया है, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग सेल्फ आई एम गिविंग दिस डिफरेंट नेम, माई सिली ऑब्जेक्ट, और माई सिली ऑब्जेक्ट डॉट नेम कर दिया। इंस्टेड ऑफ सेइंग सेल्फ डॉट नेम आई जस्ट सेड दिस वेरिएबल डॉट नेम। जो फर्स्ट वेरिएबल होता है आपके जो इनिट का या फिर आपके जो भी क्लासेस होते हैं उनका, वो होता है सेल्फ। ठीक है, या फिर वो होता है वो खुद ऑब्जेक्ट, लेकिन उसको आपको बाहर से सेंड नहीं करना होता। यू डोंट हैव टू सेंड इट फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, जैसे स्टेप्स मैंने यहाँ पर सेंड किए हैं, वैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट नहीं सेंड किया। पहला पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर इज ऑलवेज अज्यूम्ड दैट इट्स अ सेल्फ पैरामीटर या फिर इट्स एन ऑब्जेक्ट जो कॉल कर रहा है। इन एडिशन टू दिस देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्लास मेथड्स, जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता, दैट विल बी एट द क्लास लेवल। वो थोड़ी देर में देखेंगे हम लोग। ओके, अगर अभी आपको कोई ऑब्जेक्ट मॉडिफाई करना है, लेट्स से यू हैव डिसाइडेड कि एज जो है फॉर्म का, जब मैंने क्रिएट किया तब 7 था, लेकिन आफ्टर फ्यू डेज उसका एज चेंज हो गया। अभी पॉम का एज हो गया 10 years, और द सेम टाइम टॉम का भी एज चेंज हुआ। डॉट एज कितना हुआ उसका, 3 साल से बड़ा, तो वो भी 3 साल से बड़ा, राइट। तो आई जस्ट एडेड 3 इनटू ऑल ऑफ देम। आई कुड आल्सो डू दिस, प्लस इज इक्वल टू 3। इसका मतलब होता है टॉम डॉट एज प्लस 3। ये आप सबको पता ही होगा, 3 से मैंने बढ़ा दिया दोनों का एज। रन किया इसको मैंने, अभी देखते हैं टॉम का एज कितना है। टॉम का एज हो गया 8। जब हमने क्रिएट किया था तब कितना था, 5 था, लेकिन यहाँ पर हमने +3 किया, मतलब 3 से बढ़ाया उसको, तो 8 हो गया वो। सिमिलरली पॉम का एज कितना है, 10। सेम थिंग, हमने 3 से बढ़ाया यहाँ पे। मैं फिर से 3 से बढ़ाता हूँ, फिर से चेंज हो जाता है, 13 हो जाएगा अभी। तो यू कैन मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यू कैन मॉडिफाई देम। एक बार ऐसे नहीं कि आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया तो ये फिक्स्ड हो गया, ऐसे कभी नहीं होता। यू कैन मॉडिफाई द वैल्यूज, यू कैन मॉडिफाई द वेरिएबल्स इनसाइड दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अगर आपको डिलीट करना है, मे बी आपको एज के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, और वो यूज नहीं होने वाला है, यूजुअली ऐसे डिलीट करते नहीं है, बट देयर इज अ वे टू डू दैट टू। ऑल यू हैव टू जस्ट डू डेल, और ये डिलीट हो गया। अब जब मैं फॉर्म डॉट एज बोलता हूँ, इट विल से दैट नॉट डिफाइंड।
It's giving none. None, क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं है। लेकिन टॉम पे एज प्रेजेंट है, तो हमने डिलीट नहीं किया उसको। ओके, so you can modify the object and properties. आप इसके क्लासेस, आप इसके फंक्शंस भी मॉडिफाई कर सकते हो। बाय द वे, ये जो वॉक है, जो इफ you want to change this particular print statement and maybe do something else, you can do that too, but usually करते नहीं है। there's better way of doing that, this called as inheritance, जिसमें आप वो inherit करके उसको change करते हो, which is more programmatic way या फिर more correct way of doing it। और ये डिलीट भी यूजुअली करते नहीं कोई ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, बट देयर इज अ वे टू डिलीट इट, दैट्स जस्ट ओके। बिफोर आई गो अहेड, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? क्लास कैसे क्रिएट करना है समझ में आया, और क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है समझ में आया, और उसके ऑब्जेक्ट के मेथड्स कैसे कॉल करनी है वो समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. ओके, now let's move on to the next thing, which is called as inheritance। okay, inheritance as the name suggest कि इनहेरिटेंस कहाँ पे देखा जाता है? usually children inherit their parents uh, things, so you'll say that they'll inherit whatever the parents own, the children will inherit them। okay? same way, जब आपके पास क्लासेस होते हैं, you can also create child classes। अब ये मेरा पेरेंट क्लास हो गया, तो I can start creating child classes of this। ठीक है, तो instead of creating a child class of this, maybe let me just think, what can we do? okay, let's say, नहीं, डॉग का चाइल्ड क्लास बनाना है। I'm just thinking, what can I do here? So it has to be logical। ठीक है, डॉग का चाइल्ड क्लास क्या रह सकता है? Actually dog can be a child class of animal, but dog का child class, name, breed, age, walk, eat। ठीक है, let's do this। ठीक है, let's create a super class and then we'll say that inheriting कर रहे हैं। ठीक है, let's create a class first which is animal, and animal होता है, it's just a super class। it has its own things such as age रहेगा यहाँ पे, age is none to start out with, and I'll say init underscore underscore, this is a constructor, I'll just call it a self here, उसको age दे दिया, self dot age is equal to age। okay, so this is the animal। animal is the super class, is the parent class। ठीक है, so animal is a parent class। अभी ये एनिमल और क्या क्या कर सकता है? मे बी एनिमल कैन ऑल्सो वॉक। तो मैं कुछ मेथड्स अभी ये जो डॉग वाले हैं वो एनिमल में डाल रहा हूँ, सो दैट आई कैन से दैट दीज आर सम ऑफ द कॉमन थिंग्स, राइट? एनिमल नेम नहीं दे रहे हम लोग, नेम सिर्फ हम डॉग को देने वाले हैं। ठीक है, एनिमल इज ईटिंग। ओके, तो लेट्स से दिस इज माय पेरेंट क्लास, और ये पेरेंट क्लास में क्या है? एज है, वॉक है, ईट है, और खुद का कंस्ट्रक्टर है। ये खुद एक क्लास है, इसके भी ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो जैसे आपने डॉग का क्रिएट किया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरा पेरेंट क्लास है, तो मुझे इसका चाइल्ड क्लास निकालना है। और चाइल्ड क्लास क्यों बनाना है? क्योंकि इसकी जो चीजें हैं
वो डॉग के लिए पूरी तरह से यूज नहीं कर सकता मैं। आई वॉन्ट टू हैव अ ब्रीड, लेकिन ब्रीड यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है। एंड लेट्स से ये कोड किसी और का है, किसी और ने लिखा हुआ है, और आपको एडिट करना ऑप्शन नहीं है आपके पास इस कोड को, या फिर ये कोड कहीं और भी यूज कर रहे हैं और आपको एडिट नहीं कर सकते आप इस कोड को, लेकिन आपको इसको यूज तो करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर की जो चीजें जो आपको यूज होने वाली है वो आप यूज करने की कोशिश करोगे, और जो ऐड करना है वो आप उसके चाइल्ड क्लास में ऐड करोगे ऐसे। ठीक है, तो आप एक क्लास बनाओगे डॉग, विच विल बी ए चाइल्ड क्लास ऑफ एनिमल। सो चाइल्ड क्लास अगर होगा तो पेरेंट क्लास का नाम यहाँ पर डालना है, एनिमल ऐसे। ठीक है, तो दिस इज माई चाइल्ड क्लास एंड दिस इज द पेरेंट क्लास, ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करना है, और यहाँ पे पेरेंट का नाम लिखना है उसका, एनिमल। जैसे ही मैंने पेरेंट का नाम लिख दिया, वैसे ही एज, वॉक, ईट और ये कंस्ट्रक्टर, ये सारे अवेलेबल हो गए मेरे डॉग में। ठीक है, तो लेट्स जस्ट सी, इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं लिखता, और ये एनिमल मैंने क्रिएट किया यहाँ पे, हैविंग थ्री थिंग्स, एज, वॉक एंड ईट। डॉग के अंदर कुछ भी नहीं लिखा मैंने। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जस्ट क्रिएट एज। तो मैं डॉग का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और ये डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया 5 के साथ में। ठीक है, क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि इसने एक्चुअल में एनिमल को एक्सटेंड किया है। तो जो भी एनिमल के अंदर वाली चीज है वो डॉग के अंदर अवेलेबल हो गई मुझे। तो व्हेन आई से फ्रॉम डॉग 5, आई कैन यूज हियर एज पता कर सकता हूँ मैं, क्योंकि एज इज कॉमन थिंग फॉर बोथ। तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्म का लिख के आए, क्योंकि स्टेटमेंट हियर लाइक दिस। ये टॉम नाम का डॉग है, उसका एज है 5। ये पॉम नाम का डॉग है, उसका एज है 7। ठीक है, अभी आई वांट टू ऐड ब्रीड। ब्रीड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो व्हाट आई विल डू इज आई ऐड ब्रीड हियर। सो ब्रीड इज इक्वल टू नन, क्योंकि मैंने एक नया वेरिएबल यहाँ पे ऐड किया। आई नीड अ वे टू असाइन दिस वैल्यू। देयर आर मल्टीपल वेज आई कैन डू इट, बट लेट्स जस्ट डू इट व्हेन वी इनिशियलाइज इट। जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तब मुझे असाइन करना है वो वैल्यू। तो डेफ अंडर इट हो गया मेरा सेल्फ। और यहाँ पर क्या क्या लगने वाला है मुझे, सबसे पहले तो एज तो लगेगा ही, उसके साथ साथ मुझे उसका ब्रीड भी लगेगा। तो ब्रीड या जैसे कि वैसे उसका नेम भी दे देते हैं हम लोग, लेट्स से नेम, ब्रीड और उसका एज। दिस इज ऑल द थिंग्स दैट आई नीड। सो सेल्फ what before I explain this, let me just explain the full thing of inheritance here. Just check here, there's something that I don't want to miss. Okay, ठीक है, just one update here. सुपर का मतलब होता है इसका पेरेंट, इसके पेरेंट के मेथड को कॉल करना है, इसके पेरेंट के इनिट मेथड को कॉल करना है मुझे, क्योंकि आई नीड दैट टू इनिशियलाइज एज ऑफ द पर्सन। ठीक है, और जो ब्रीड है और जो नेम है वो यहीं पे असाइन होगा। नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट ब्रीड इज इक्वल टू, वो यहीं पे असाइन करेंगे हम लोग। अभी जब मैं इसको क्रिएट करने जाऊंगा तब एरर आएगा, ये बोलेंगे कि दो वेरिएबल्स मिसिंग है, ब्रीड और एज के बारे में आपने बताया नहीं, आपने सिर्फ एक वेरिएबल दिया कोई तो भी। तो लेट्स जस्ट गिव इट हियर, उसका नेम दे देते हैं हम लोग, अगेन सेम थिंग, ब्रीड दे देते हैं। उसका नेम था टॉम, ब्रीड था पग, सेम थिंग हियर, नेम टॉम, ब्रीड था रिवर। ठीक है, अब ये चलेगा, सेम थिंग। अगर मैं इसका एज पता करते, एज पता चल जाएगा, इसका नेम भी पता कर सकता हूँ मैं, टॉम है, इसका नेम क्या है। ठीक है, अब ब्रीड पता कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये ब्रीड किसका वेरिएबल है, ब्रीड वेरिएबल है डॉग का, एनिमल का नहीं है।
लेकिन एज किसका वेरिएबल है? एज एनिमल का है। तो ये जो चीजें थी कॉमन, वो मैंने जैसे के वैसे यूज की यहाँ पे, तो ये कोड मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी। वॉक करने का, एज करने का कोड जो है कहीं पे रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, उसका कोड एक ही जगह पे लिखा हुआ है। अगर चेंज भी करना पड़ेगा मुझे ये लॉजिक, तो मेरा चेंज सिर्फ यहाँ पर आएगा, फिर मेरे 10 जगह पे चेंज नहीं आएगा। ठीक है, so that is also that is one of the benefits of class object oriented programming and all of that. ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सुपर का मतलब होता है एनिमल का जो इंस्टेंस है उसका, डॉट इनिट का मतलब होता है उसका इनिट कॉल करना है, मुझे ये इनिट कॉल करना है, इसलिए यहाँ पे सुपर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट डॉट इनिट और फिर एज कॉल किया ऐसे। ओके, फिर नेम एंड ब्रीड तो सेम जैसे कि पहले किया था। ठीक है, अभी मैं इसको जब वॉक करता हूँ, जैसे मैं वॉक करना करवाना चाहता हूँ दोनों को, क्या हो रहा है यहाँ पे? वॉक के लिए स्टेप्स बताने पड़ते हैं यहाँ पे, सॉरी, 12 स्टेप्स एंड दिस इज 50 स्टेप्स। ठीक है, तो एनिमल इज वॉकिंग 12 स्टेप्स, फिर नन कुछ तो प्रिंट करके आए। एनिमल इज वॉकिंग 50 स्टेप्स, फिर नन प्रिंट करके आए। फिर नन क्यों प्रिंट करके आ रहा है वो देखते हैं हम लोग। नन क्यों प्रिंट करके आ रहा है ये? ओ, क्योंकि ये प्रिंट के अंदर लिखा है, प्रिंट ऑलरेडी प्रिंट कर भी रहा है। एनिमल इज वॉकिंग 12 स्टेप्स एंड दिस एनिमल इज वॉकिंग 50 स्टेप्स। लेकिन मुझे क्या बोलना है? ये एनिमल नहीं बोलना है। आई वॉन्ट टू गिव इट, मुझे नाम पता है ना इसका, his name is Tom and his name is Pom, so I want to call the name here। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ये जो walk नाम का मेथड है, ये walk नाम के मेथड को I can change it, I can change it the way I want to। ठीक है, ये मेथड प्रेजेंट है मेरे सुपर क्लास में या फिर मेरे पेरेंट क्लास में, लेकिन मुझे मेरे लिए चेंज करना है क्योंकि I have some more things to develop, update there। तो all I have to do is just सेम नेम देना है उसका, walk, this is called as method override। ठीक है, आई एम overriding the work functioning of this particular method। okay, this method works in a particular way, I want to change the way it works, so this is called as overriding। तो मैं इस मेथड को ओवरराइड कर रहा हूँ। कैसे ओवरराइड कर रहा हूँ? इनहेरिटेंस में ही ओवरराइड कर रहा हूँ। सबसे पहले तो डॉग ने इनहेरिट किया एनिमल को, सारे वेरिएबल्स आ गए, सारे मेथड्स आ गए, लेकिन अभी मैं वॉक को चेंज करना चाहता हूँ। चेंज सच दैट सेल्फ डॉट नेम यूज करो। Let me just do this। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वॉक किया, तो यहाँ पे लिख के आएगा टॉम इज वॉकिंग, पॉम इज वॉकिंग। ओके, और यहाँ पर इसने खुद का मेथड कॉल किया। अगर मुझे पेरेंट का मेथड कॉल करना होता, आई कैन डू द सेम थिंग, सुपर डॉट वॉक भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पे स्टेप्स भेज सकता हूँ। दिस विल कॉल पेरेंट का मेथड। लेट्स वेरीफाई दैट। सबसे पहले पेरेंट का कॉल किया, उसके बाद में इसने खुद का कॉल किया, क्योंकि ये सुपर में वैसे ही वॉक में वैसे ही लिखा है, पहले पेरेंट का वॉक कॉल करो, उसके बाद में खुद का वॉक कॉल करो। अगर पेरेंट का कॉल करना ही है तो, अगर नहीं करना है जस्ट डोंट कॉल इट, दैट टू वर्क्स। सो दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, एक पेरेंट क्लास है, उसका आपने चाइल्ड क्लास बनाया, और चाइल्ड क्लास के अंदर आपने नए मेथड्स या इंट्रोड्यूस किए, या फिर सेम मेथड्स को मॉडिफाई किया, नए मेंबर्स इंट्रोड्यूस किए ब्रीड नाम का, और उसको यूज किया। अगर आपको नए मेथड्स भी इंट्रोड्यूस करने हैं, तो नए मेथड्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सो बार्क सेल्फ, बार्किंग किसका एट्रीब्यूट है? डॉग का। तो ऑल हैव टू जस्ट डू अ मेथड कॉल करो उसका बार्क का, तो वेरिएबल्स की जरूरत नहीं है। पॉम इज बार्किंग, पॉम इज बार्किंग किसके मेथड से? ये सिर्फ डॉग की। एनिमल के पास ये मेथड प्रेजेंट भी नहीं है और प्रेजेंट रहना भी नहीं चाहिए। ठीक है,
So that is the concept of simple inheritance. Nothing more and nothing less. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. एक बार आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे और आपको समझ में आ जाएगा. तो सेशन के बाद में जब मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, ये ट्राई करके देखना है आपको आपके कैगल नोटबुक में. मेक श्योर आप कोई इंडेंटेशन एरर्स नहीं कर रहे हो और कोई टाइपो नहीं कर रहे हो. यहाँ पे 2 अंडरस्कोर्स हैं, एक टैब है यहाँ पर टैब है और यहाँ पे 2 टैब्स हैं. ठीक है. आई थिंक बाय नाउ यू ऑल नो व्हाट्स एन सिंटैक्स एरर और सिंटैक्स एरर फिक्स कैसे करते हैं. इज एक्सपेक्टेड कि सबको पता होना चाहिए सिंटैक्स एरर फिक्स कैसे करना है. So all of this is the same thing. ठीक है. Before I go ahead, any questions in this simple inheritance? एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है. आप ऐसे मल्टीपल चाइल्ड क्लास बना सकते हो. सो लेट्स से आप एक और क्लास बनाते हो कैट नाम का, जो इनहेरिट करता है एनिमल को फिर से. ठीक है. कैट को भी नेम देना ही है आपको. ठीक है. कैट नहीं है. This works because यहाँ पर एक नया वेरिएबल ऐसे भी क्रिएट हो ही जाता है, बट दैट्स फाइन. कैट को भी नेम देना है मुझे, नेम. And cat will have its own functions such as cat will or print dot name self चाहिए. ठीक, अभी क्या हुआ, कैट नाम का एक सब क्लास है जो एनिमल को इनहेरिट कर रहा है and we can create a object of cat too. So let's give it a name. So let's give this cat and because it's an animal हमको एज देने की जरूरत है. यहाँ पे ये काम करेगा. ठीक है. लेकिन हमें नेम भी देना है क्योंकि कैट को नेम की जरूरत है. तो लेट्स जस्ट डिफाइन अ न्यू वेरिएबल, डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर हियर. डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ. इसको नेम देना है और इसकी जरूरत है इसको. सुपर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट. यूजुअली कंस्ट्रक्टर में सुपर को कॉल किया जाता है यूजुअली. ठीक है. कभी कभी आपकी अगर रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो यू विल नॉट कॉल इट, बट यूजुअली इट इज कॉल्ड. यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम जो भी नेम आएगा. तो नाउ विल गिव दिस अ नेम. इसको देते हैं नेम हम लोग TI. और मैं इसका मेथड भी कॉल कर देता हूँ यहाँ पे. ओके. कॉल नहीं किया मेथड को. मेक श्योर जब आप चेंजेस करते हो तो कोड को रन कर रहे हो एक बार तो भी, ताकि आपके सिंटैक्स एरर्स ना आए ऐसे. ठीक है. super required but received an int. Okay, this has to be down bracket ऐसे. It will work. इन नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ कैट का. सो इट्स अ कैट एंड शी पर्स. एज सिंपल एज दैट. तो अभी मैंने क्या किया सबसे पहले, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ या मैं विंडो शेयर कर रहा हूँ, राइट? जस्ट शेयर माय स्क्रीन. सबसे पहले क्या किया मैंने, एक एनिमल बनाया यहाँ पे. तो ये हो गया मेरा एनिमल. एनिमल नाम का मेरा सुपर क्लास है. एनिमल नाम का मेरा सुपर क्लास है. ठीक है? और इस क्लास को इनहेरिट किसने किसने किया, मेरे डॉग ने इनहेरिट, सॉरी, एक डॉग ने इनहेरिट किया और एक
कैट ने इनहेरिट किया, ठीक है। जस्ट गिव इट अ नेम हियर लाइक दिस। तो ये हो गया डॉग। Similarly, you'll need a cat. Cat, cat. मैं करता हूँ, ज्यादा हो गया ये। एनीवेज ठीक है। तो ये मेरा सुपर क्लास है, ये मेरा सुपर क्लास है, और ये इससे बनाया गया है। Usually there should be an arrow here like this, but that's fine. The details here. तो ये जो डॉग है, इसको इट्स एन एनिमल, इसलिए ये इसके नीचे है। कैट इट्स एन एनिमल, इसलिए इसके नीचे है। एनिमल को डॉग ने इनहेरिट किया, एनिमल को कैट ने भी इनहेरिट किया। ओके, तो डॉग के एनिमल के अंदर जितने भी मेथड, सॉरी, जितने भी वेरिएबल्स थे वो सारे आ गए, जितने भी मेथड्स थे वो सारे आ गए। डॉग के खुद के मेथड्स थे, खुद के वेरिएबल्स थे, कैट के खुद के मेथड्स थे, खुद के वेरिएबल्स थे, ठीक है। नाउ यू कैन ऑल्सो गो वन लेवल डीपर, यू कैन ऑल्सो हैव मोर सब क्लासेस हियर। तो हो सकता है आपको डॉग के नीचे भी एक सब क्लास बनाना है, एंड दिस टाइम लेट्स जस्ट गिव इट अ नेम। तो मे बी आई कैन क्रिएट वन मोर क्लास विच इज an animal, which is a dog, but this time maybe I'll just create a toy toy dog and maybe a real dog. Okay, I'll just make a real dog here. Real dog. Okay. So this toy dog will have all the features from a dog. This animal dog will also have all the features. This real dog will also have all the features from this. And there will be some new things that only will be related to this toy, such as इसका brand क्या है, made in China है, made in India है, क्या है, रियल में क्या रहेगा, where was it first bred, या फिर उसको कहाँ पे उसका ब्रीडिंग कहाँ पे हुआ, कहाँ से इंपोर्ट किया, या फिर where was it born, and all of those things will be present in the this one. So this is called as your class diagram, ठीक है। roughly this is how the class diagram basically looks like. ऊपर आपके होते हैं पेरेंट क्लासेस, नीचे आपके होते हैं सब क्लासेस या फिर चाइल्ड क्लासेस। ऐसे डायग्राम्स आपको बहुत सारे दिखेंगे, डिजाइन डॉक्यूमेंट्स में दिखेंगे, आपके कंपनीज जब आप ज्वाइन करोगे वहां पर आपको शेयर किए जाएंगे ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो देयर इज नथिंग कॉम्प्लेक्स इन दिस। एक पेरेंट क्लास के बारे में बताया गया है, और उसके नीचे कौन से क्लासेस है उसके बारे में बताया गया है। और हमने जो थोड़ी देर पहले बिल्ड किया, हमने यहाँ तक बिल्ड किया, ठीक है, हमने यहाँ तक बिल्ड किया। ये दो चीजें बिल्ड नहीं किया, which is very simple to build. In fact, if I just go here, all I have to do is I just have to just create one more class here. So I'll just create a class which is a toy. The class could be a dog toy, and give it a brand name. Brand name ऐसे def underscore init, बाद में यहाँ पे self brand का नाम, and then I'll also need all other things which is name, फिर उसका age, फिर उसका breed, फिर उसका और क्या था, that's it right। ये सारी चीजें यहाँ पर मैं सबसे पहले सुपर कॉल करूंगा, सुपर डॉट इनिट कॉल करूंगा। तो क्या क्या जाता है, इसको ब्रांड जाता है, सॉरी इसको नेम जाता है, इसको ब्रीड जाता है, इसको एज जाता है, करेक्ट। बचा क्या, ब्रांड। ब्रांड सिर्फ इसके पास प्रेजेंट है। डू इट, कि आपका टॉय क्रिएट हो गया। लेट्स जस्ट क्रिएट अ टॉय डॉग नाउ। सो दिस इज अ टॉय टॉय। तो क्या क्या चाहिए, ब्रांड। ब्रांड में भी कोई टॉय का ब्रांड बता दो, चीज, ठीक है। फिर उसका नेम दे दो, उसका नेम दे दो टॉम। एज कब बनाया गया, तो एज के बारे में तो पता नहीं, सोचो नन बोल दो उसको। ब्रीड, maybe it's a pug again। टॉय टॉम, और इसका हम ब्रांड देख सकते हैं, डॉट ब्रांड जब मैं बोलता हूँ तभी आर्क्यूज लिख के आता है। जब मैं इसको वॉक बोलता हूँ तो ये स्टेप्स बताने पड़ते हैं वॉक के।
टॉम इज वॉकिंग 122 स्टेप्स। वॉक कहाँ प्रेजेंट है? वॉक प्रेजेंट है, यहां पर भी प्रेजेंट है और यहां पर भी प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि ये टॉय ये डॉग को इनहेरिट कर रहा है, इसीलिए इसका वॉक का जो मेथड रहेगा वो सबसे पहले सर्च करेगा डॉग के अंदर प्रेजेंट है क्या। अगर उसको डॉग के अंदर मिल गया तो वो उसके ऊपर सर्च करने नहीं जाएगा एनिमल तक, ठीक है। तो अगर कोई मेथड यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज नहीं किया होगा और मैंने कॉल किया इसके ऑब्जेक्ट पे, तो सबसे पहले सर्च होगा उसके ऊपर के उसके पेरेंट क्लास पे। यहाँ भी नहीं मिला तो इसके ऊपर जाएगा वो, फिर यहाँ पे सर्च करेगा वो, ठीक है। दैट इज हाउ द मेथड्स आर यूजुअली आइडेंटिफाइड कि कौन सा मेथड कॉल करना है। Alright, let me just check here. I think we are getting into too much details of object oriented now. This is one last thing that I wanted to show to you all. आपका जो पाइथन है वो पाइथन में उसका बेस क्लास है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट पाइथन में जितने भी क्लासेस होते हैं, इनफैक्ट ये जो आपका एनिमल क्लास है इसका भी पेरेंट क्लास है ऑब्जेक्ट, क्योंकि सबका पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट है, इसलिए आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट नाम का एक क्लास है जो सबका पेरेंट क्लास है, ठीक है। क्योंकि वो सबका पेरेंट क्लास है उसको लिखने की जरूरत नहीं, इट इज इम्प्लिसिटली अज्यूम दैट कि ऑब्जेक्ट से इनहेरिट किया ही जा रहा है इसको। तो दैट इज व्हाट दिस इज सेइंग कि ऑब्जेक्ट नाम का एक बेस क्लास है सबका, फिर आपके जो इंट है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, डिक्शनरीज है, जितने भी डेटा टाइप से बिल्ट इन, वो सारे ऑब्जेक्ट से इनहेरिट होते हैं। फिर अगर आपको आपका क्लास भी ऑब्जेक्ट से इनहेरिट करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको आपका क्लास इंट से इनहेरिट करना है तो इंट से भी इनहेरिट कर सकते हो, फ्लोट से भी कर सकते हो, स्ट्रिंग से भी कर सकते हो। तो basically you can have any type of class that you would like in Python. So this is the flexibility all the object oriented programming will give you to have your own user defined data types. तो ये तो built in data types हो गए जो ऑब्जेक्ट से क्रिएट होते हैं, फिर ये खुद के भी आपके डेटा टाइप्स क्रिएट कर सकते हो आप, राइट। डॉग इज योर ओन टाइप ऑफ डेटा टाइप क्लास। डॉग के बारे में पाइथन को कुछ नहीं पता, दिस इज व्हाट यू हैव क्रिएटेड, ठीक है। फिर ये इनहेरिटेंस के टाइप्स है। हमने ये देखा थोड़ी देर पहले, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एनिमल था, फिर डॉग था, फिर टॉय डॉग था, फिर उसके बाद में रियल डॉग था। सिंगल इनहेरिटेंस भी देखा हमने, एनिमल डॉग। ये हाइब्रिड दिस इज यूजुअली नॉट यूज्ड, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस भी यूजुअली यूज नहीं किया जाता बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर दोनों में वॉक नाम का मेथड प्रेजेंट है ए और बी में, तो सी को पता कैसे चलेगा इसका वॉक करना है इसका वॉक कॉल करना है। यूजुअली वो रिजॉल्व कर लेता है खुद को, क्योंकि ही कैन बेसिकली फाइंड कि पहले कौन सा क्लास मेरा पेरेंट है। सो ऑल इट्स सेइंग इज कि अगर यहाँ पे टॉय है तो टॉय कैन बी डॉग, टॉय कैन बी कैट ऑल्सो। तो दोनों से इनहेरिट करना है मुझे इसको, ठीक है। तो दोनों से भी इनहेरिट कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड इट इज यूजुअली अवॉइडेड। आपको भी अवॉइड करना है मल्टीपल इनहेरिटेंस बिकॉज बहुत सारे इश्यूज होते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की वजह से। तो आपको करना नहीं है, ये करना नहीं है आपको कभी भी। अगर आपको दिखता है कहीं पे किया हुआ, ट्राई टू सी इफ देयर इज बेटर वे टू डू इट और इफ देयर इज अनदर वे टू डू इट, लेकिन यूजुअली इट्स अवॉइडेड मल्टीपल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस बहुत कॉमन है, एक बेस क्लास, मल्टीपल सब क्लासेस। फाइनली एक ट्यूटोरियल है यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस का। यू आर वेलकम टू गो अहेड एंड गो थ्रू ऑल ऑफ दिस व्हेन यू हैव टाइम, ओके। बट जो सेशन में सिखाया गया दैट मच इज इनफ फॉर यू as a data analyst or a data scientist or even machine learning engineer, if at all. In fact, for an entry level software engineer also this much is enough. You don't have to understand even in more details. All right, I think that's it for today. Let me just do one more thing. Let me save this, share this.
Yeah. Stop the recording.